Dear students, today in this video I will solve some selected questions of the exercise 2.5 chapter polynomial, second chapter of the textbook NCERT book, chapter polynomial exercise 2.5, and some selected questions, and this is part 1. This video is part 1 because that was so many questions are there in this exercise, so it is not possible to solve all the questions in a single video. So this is part 1 and some questions I will do, and the left question, the remaining questions I will do in the second video or other video. So see here question number 1 and the first part. And before starting this exercise, I hope that you have learned all the formula, all the identities. अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं याद है, अगर आपने आइडेंटिटीज नहीं याद कर रखा है पहले से, और लिस्ट आपके बुक में भी लिस्ट इज गिवन इन द बुक, और हमने भी आपको लिस्ट दिया है इन द PDF फॉर्म. सो अगर आपने नहीं याद किया है इसको, फार्मूले को या आइडेंटिटीज़ को, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस. सो आई होप दैट यू हैव लर्न द फार्मूला या आइडेंटिटीज़. See the question number 1 and the first part. This is x plus 4 into x plus 1. Very simple question. What identities we will use? X plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x and plus ab. ये आइडेंटिटीज है. इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे तो x है, और a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे 10. So apply the formula. So what will be your answer? With the help of this identity, x square or plus a plus b means 4 plus 10 or into x or plus ab means 4 into 10. Your answer will be x square plus 14x or plus 40, and this is your answer. और क्वेश्चंस में फार्मूले का बहुत यूज है, बट इस क्वेश्चन में अगर ये आपको फार्मूला नहीं भी याद है, then also you can solve this question. Simple multiplication of the two brackets. मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 10, 10x, प्लस 4 इंटू एक्स, 4x, एंड प्लस 4 इंटू 10, 40. और फिर बाद में सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा. इस क्वेश्चन को फार्मूले कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ बेटर टू लर्न द आइडेंटिटीज बिकॉज दिस इज गिवन इन द बुक. नाउ सी the same question and see the third part. See the third part. थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, बट वो माइनस है इसलिए हमने लिया है यहाँ पे 3x प्लस 4 और इंटू 3x माइनस 5. सो आइडेंटिटी इज ऑलरेडी रिटन हियर, तो एक बार हम फिर से नहीं लिख रहे हैं आइडेंटिटीज. सो योर आंसर विल बी व्हाट? एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x के प्लेस पे है 3x, a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे minus 5. So apply the formula. So 3x to the whole square, a square plus a minus b means 4 minus 5 or into x, x means 3x plus ab plus 4 into b minus 5. So that is equal to 9x square minus 3x and minus 20. This was question number 1 and the third part. See the same question part 4. Part 4th. See y square plus 3 by 2 and y square minus 3 by 2. इन सभी क्वेश्चंस को, फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट को, इन सभी क्वेश्चन को अगर आप आइडेंटिटी नहीं भी याद है, देन यू सिंप्लीफाई या मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट्स एंड देन यू कैन गेट द आंसर. नाउ सी हियर द सेम आइडेंटिटी हियर आल्सो वी कैन अप्लाई. y के प्लेस पे, ये x के प्लेस पे यहाँ पे y स्क्वायर है, और a के प्लेस पे 3/2 और b के प्लेस पे -3/2. ये आइडेंटिटी भी यहाँ अप्लाई हो सकता है. But one more convenient identity you have, that identity is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. सो हियर ये कब अप्लाई करेंगे? यहाँ जब ए और बी दोनों सेम हो.
ए और बी अगर सेम है तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए के प्लेस पे वाई स्क्वायर और बी के प्लेस पे 3/2। सो व्हाट विल बी आंसर हियर, दैट वी कैन राइट ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 to the whole square, that is equal to y power 4 minus 9/4. This was question number 1, first part, third part and fourth part. Now see second question. Question number 2 and some selected question. Question number 2 का एक क्वेश्चन फर्स्ट ही ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इस बुक में 103 into 107। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऐसे आप नहीं मल्टीप्लाई करना है। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर आइडेंटिटी। सो प्रॉपर आइडेंटिटी आप देखिए, इस 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को 100 और +7। देन दिस इज रिड्यूस इन दिस फॉर्म x plus a और x plus b. So x plus a into x plus b, apply the identity because यहाँ पे लिखा है पहले से तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं फिर से। So x square means 100 to the whole square plus a plus b means 3 plus 7 into x, x के प्लेस पे 100 है और plus 3 into 7 that is 21. Now this is 100 का स्क्वायर that is equal to 10,000 plus 3 plus 7 10 into 100 1000 or plus 21. So the answer of this question is 11,021. This is question number 2 and the first part. Now some more questions. See some more questions. क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और पार्ट ले रहे हैं बिकॉज उसमें आइडेंटिटी चेंज रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड पार्ट। सी अबाउट द थर्ड पार्ट इज 104 into 96. See here what identity will be used. This 104 can be written as 100 plus 4 or this 96 can be written as 100 minus 4. अब ये जो आइडेंटिटी है, अभी जो आपने x plus a x plus b का यूज़ किया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट सेपरेट इसके लिए आइडेंटिटी है a plus b और a minus b। a plus b और a minus b ये आइडेंटिटी भी हम ऊपर लिख चुके हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में। सो व्हाट इज द फार्मूला, a plus b a minus b, a स्क्वायर 100 to the whole square minus b square means 4 to the whole square. This is equal to 10,000 minus 16 and the answer will be 9984. This is question number 2 and third part. बहुत ही सिंपल पार्ट इसके हैं। Now come on some selected parts of the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 9x स्क्वायर प्लस 6xy एंड प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे पार्ट भी कभी यहाँ पे प्लस दिस टर्म इज स्क्वायर टर्म, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लास्ट टर्म इज स्क्वायर टर्म, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट द मिडिल टर्म कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। एक आइडेंटिटी आपके पास है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। सी सो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पहले से लिखा है, बट आपको चेक करना है कि दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। एक बार हम फिर वही क्वेश्चन लिखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy एंड प्लस y स्क्वायर। सी द फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर ऑफ द 3x, ये 3x का स्क्वायर हो गया, और लास्ट टर्म बीच वाले के टर्म को अभी छोड़िए आप, और प्लस y टू द होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। सो वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में यहाँ पे लिखेंगे मिडिल में प्लस।
सो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस साइन है तो हम प्लस लिखेंगे, क्वेश्चन में माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, बट द मिडिल साइन इज नेगेटिव इन दैट क्वेश्चन। प्लस 2a, a के प्लेस पे 3x और b के प्लेस पे y। सो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। बट आंसर लिखने के पहले आप ये चेक करिए कि ये दोनों सेम हैं या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर इक्वल और नॉट। सो अगर ये 2, 3x और y इन सब का मल्टीप्लीकेशन 6xy आता है, इट मीन्स दैट क्वेश्चन विल फॉलो दिस आइडेंटिटी। सो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, 6xy है, ये भी 6y है। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और a के प्लेस पे ये 3x और b के प्लेस पे दिस वन y और इसका होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर। बीच सेकेंड पार्ट में नेगेटिव साइन है, बट यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। बट सपोज अगर यही होता 9x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर ये 5xy होता, यहाँ 5xy होता, तब आप इसको नहीं लिख सकते थे। बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो इसके इक्वल नहीं आता। सो इसके इक्वल नहीं आता, इट मीन्स दैट क्वेश्चन इज नॉट फॉलोइंग दैट आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड द फर्स्ट पार्ट वाज दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, और क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट देखिए आप। सारे पार्ट मेथड सबके लिए सही है, वही है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फिफ्थ, -2x और प्लस 5y माइनस 3z टू द होल स्क्वायर। अब जो आइडेंटिटी बहुत ही ठीक से समझिए इसको, और इसके दो पार्ट, एक पार्ट और भी करेंगे। आइडेंटिटी इसमें जो यूज होगा वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप ये मत देखिए कि बीच में हम कुछ टर्म इसके नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। ये आप बात के लिए छोड़ दीजिए, आंसर के लिए। ये फार्मूला देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। फार्मूला आप प्लस वाला ही याद रखिए, बीच में चाहे कोई टर्म चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव भी होगा तो अभी वो बाद में सेट हो जाएगा। नाउ अप्लाई द फार्मूला। सो आंसर इज नाउ a स्क्वायर मीन्स माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप माइनस लिखिए 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब कभी भी ये बहुत अच्छी बात है अगर ये हैबिट में आ जाए कि जो भी नेगेटिव टर्म हो वो हमेशा हम ब्रैकेट में लिखें। अगर आप नेगेटिव टर्म हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे देन देयर विल बी वेरी लीस्ट चांस फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक। इसलिए जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, कोई जरूरी यहाँ नहीं है, कहीं भी इसमें हो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप नेगेटिव टर्म ब्रैकेट में लिखने की हैबिट डाल देते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत लीस्ट रहेंगे। सो सी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया 5y टू द होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स माइनस 3z टू द होल स्क्वायर। अब आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब यहाँ ए बी सी जब ये कहा गया है फार्मूले में, सो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म और सी का मतलब थर्ड टर्म। सो 2ab, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म माइनस 2x, सो 2ab मीन्स माइनस 2x और इंटू बी मीन्स 5y प्लस 2bc, 2b मीन्स द सेकेंड टर्म इज 5y और c है माइनस 3z प्लस 2ca, c द लास्ट टर्म माइनस 3z और a के प्लेस पे द फर्स्ट टर्म माइनस 2x। नाउ सिंप्लीफाई, माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। दिस इज 2 to the 4 and 5 जा minus 20xy. This is minus 2, 5 जा 10 and 30, 10 and 3 30yz माइनस 30yz एंड प्लस लास्ट में प्लस रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और प्लस ये प्लस हो जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 जा 12
जेड एक्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 5। एक और पार्ट भी कर देते हैं इसका, जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स कुछ गिवन है, एंड दैट इज 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 6 बाई द सेम मेथड। दिस इज 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ए द सेम फार्मूला एक बार यहाँ पे लिखा ही है, तो इस पर हम फिर से नहीं लिख रहे हैं। अप्लाई द फार्मूला दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 1/4a टू द होल स्क्वायर, माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। सो दिस वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a 1/4a and b is minus 1/2b. So a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc. bc means minus 1/2b and c 1. 2bc हो गया plus 2ca. ca means 1 और a 1/4a. देन द फाइनल आंसर ये है 1, यहाँ पे a भी लिखिए 1/4a। सो दिस इज 1/16a स्क्वायर, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर और प्लस 1। दिस इज 1/4a, सो 1/4a का होल स्क्वायर 1/16a स्क्वायर। देन यहाँ पे दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल्ड, योर आंसर इज माइनस 1/4a minus 1/4ab. This one minus 2 and 2 will be cancelled, minus b and plus 2 or 2 is 4, that will be 1/2 and a. This is your answer. So this was question number 4 and part 6. Now see question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उस सब के लिए मेथड एक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, क्या उसमें टेक्निकल थिंग है, दैट यू हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 5। सी व्हाई दिस क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट यू सी। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz and minus 8xz. So what to do this question? We have to find out the factors. एक्सरसाइज 2.5 है ये। सो 2.5 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। सो सी व्हाट टू डू, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज, फैक्टराइज, फैक्टराइज। सो वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ सी मेथड, और क्यों ये स्पेशल है। सी ये किसका स्क्वायर है, पहले आप ये सोचिए, ये है स्क्वायर √2x, √2x का होल स्क्वायर। बहुत ही ठीक से समझिए और बहुत ही केयरफुली समझिए इसको, और प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 और z और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे भी निगेटिव टर्म्स कुछ हैं, लेकिन निगेटिव टर्म्स आप बाद में सोचिएगा, निगेटिव टर्म्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले आप सब प्लस में ही लिखिए। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म √2x और b y प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc, b मीन्स सेकेंड टर्म y और c है द लास्ट टर्म 2√2z,
√2z. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc नेगेटिव टर्म है, दिखाई पड़ रहा है कुछ टर्म नेगेटिव ही होंगे, बट आफ्टर दैट वी विल सी, प्लस 2ca. 2c मीन्स द लास्ट टर्म 2√2z और इंटू a √2x. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया. बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नेगेटिव है तो कुछ टर्म इसमें नेगेटिव ही होंगे. अब कौन से टर्म नेगेटिव होंगे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस टाइप के क्वेश्चंस के दो आंसर पॉसिबल हैं, और वो दोनों आंसर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दो आंसर पॉसिबल हैं, एंड बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. सी द नेगेटिव साइन. जरा इसको देखिए, ये टर्म नेगेटिव टर्म है और ये टर्म भी नेगेटिव टर्म है. दोनों नेगेटिव टर्म जो क्वेश्चन में हैं. अब आप नेगेटिव टर्म को देखिए बहुत ध्यान से, दैट व्हिच अल्फ़ाबेट इज कॉमन. यहाँ पे XY है और यहाँ पे XZ है. विच अल्फ़ाबेट कॉमन? X. X कॉमन इसमें है. नेगेटिव टर्म्स का कॉमन एलिमेंट है X. तो इस सेकेंड लाइन में जहाँ जहाँ भी आपको X दिखाई पड़ रहा है सबको आप नेगेटिव कर लीजिए. तो ये माइनस हो गया, कहीं भी X हो ये माइनस हो गया, यहाँ पे X है नहीं और ये माइनस हो गया. सो योर आंसर विल बी व्हाट? आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी, अब ये माइनस √2x और प्लस y है और प्लस 2√2z टू द होल स्क्वायर. ये आपका हो गया आंसर. नेगेटिव किसको रखना है? नेगेटिव आपको रखना है जो कॉमन टर्म है नेगेटिव टर्म में से, दोनों नेगेटिव टर्म में से जो अल्फ़ाबेट कॉमन है वो नेगेटिव रहेगा. ये एक आंसर है. दूसरा क्या है? सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? आर एंड दैट आंसर इज आल्सो करेक्ट. एक बार आप फिर यही लाइन लिख लीजिए और बिना माइनस साइन लगाए, सेम थिंग, √2x टू द होल स्क्वायर प्लस y टू द होल स्क्वायर प्लस 2√2z टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू y प्लस 2y और इंटू 2√2z एंड लास्ट में प्लस 2 इंटू 2√2z एंड नेक्स्ट ब्रैकेट √2x. अब यहाँ पे भी हमने कोई माइनस साइन नहीं लगाया है. सी व्हाट विल बी द सेकेंड केस, या सेकेंड केस नहीं बल्कि इसका सेकेंड आंसर क्या हो सकता है, और वो आंसर भी सही रहेगा. अभी आपने जब फर्स्ट आंसर लिखा है तो उसमें देखा कि जो नेगेटिव टर्म्स हैं उसका जो कॉमन एलिमेंट था उसको आपने नेगेटिव कर दिया. तो अगर कॉमन एलिमेंट x है तो नॉट कॉमन एलिमेंट क्या है? x हो गया कॉमन, तो नॉन कॉमन एलिमेंट इज y एंड z. y एंड z, अगर x कॉमन है तो x नेगेटिव हो सकता है. और दूसरे केस में मान लीजिए x कॉमन नहीं है, x कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के बचा क्या? y और z. तो जहाँ जहाँ y और z है उन सबको आप माइनस कर लीजिए, y z दोनों को. तो y माइनस हो गया, z माइनस हो गया, कहीं भी हो. ये माइनस y, यहाँ पे भी माइनस y, ये माइनस z और यहाँ पे माइनस z. किसको किसको माइनस करेंगे? नॉन कॉमन एलिमेंट्स को. तो कहीं भी आपको y और z, जितने भी y और z वाले टर्म हैं सब नेगेटिव, सब नेगेटिव. सो योर आंसर इन दिस केस इज व्हाट? आंसर ये √2x और ये माइनस y और माइनस 2√2z टू द होल स्क्वायर. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस जो स्टेप्स हैं केवल इसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 5 और दूसरे पार्ट में भी आप यही काम करिएगा. सबके दो आंसर्स हैं, और एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में आंसर आपको नहीं मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं है. ये बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. बाय द वे एनसीईआरटी बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये आंसर भी लिखते हैं तो ये भी सही है. हो सकता है कि जो दूसरा पार्ट हो उसमें इस मेथड से आंसर आपका आ रहा हो. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 5.
और ये जो दो मेथड हैं, दो मेथड से आंसर आता है एंड बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, देयरफॉर दिस इज important thing. See, this was question number 5. Now see question number 6. Question number 6, what to do in the question number 6? Question number 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, केवल एक्सपेंड करना है फार्मूले में आपको. See, question number 6 is x minus 2 upon 3y whole cube. एंड व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन नंबर 6. लैंग्वेज बुक में क्या लिखा है 6 में, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म वी मीन्स वी हैव टू एक्सपेंड. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स वी हैव टू एक्सपेंड. सो सी formula for what? A minus b whole cube. A minus b whole cube identity is equal to what? A minus b whole cube identity is, आइडेंटिटी की लिस्ट आप बुक में भी है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी आपको याद रहे. a माइनस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर. यह फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का. सो अप्लाई द फार्मूला इन दिस क्वेश्चन. सो a क्यूब मीन्स x क्यूब, b क्यूब मीन्स माइनस 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर और इंटू b. b मीन्स 2/3 y प्लस 3ab स्क्वायर. a मीन्स x और b 2/3 y का होल स्क्वायर. So here we have a cube minus b cube minus 3a square b and plus 3ab square. Now simplify. This is equal to x cube minus इसका क्यूब क्या होगा 8/27 y cube minus this 3 and this 3 is cancelled, then 2x square y and plus this 3 into x into 4/9y स्क्वायर. सो एक लाइन और लिखेंगे इसका आंसर में, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3 जा 9, 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा. देन यू हैव दिस 4/3 प्लस 4/3 xy square plus 4/3 xy square, and this is the expansion of this question number 6 and this is part 4 बुक का. यह है पार्ट 4. ये था क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is 27 p cube and question number 8 का ये फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट 27 p cube minus 1/216 minus 9/2 p square and plus 1/4 p. So क्वेश्चन आपका है. क्वेश्चन वंस मोर आई विल टेल यू फ्रॉम द बुक. 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p. इस क्वेश्चन के सारे सभी पार्ट्स एक ही जैसे हैं और इसमें फ्रैक्शनल नंबर थे इसलिए हमने इसको ले लिया, बट द मेथड फॉर द अदर पार्ट इज ऑल्सो सेम. अब कभी प्लस का होगा कभी माइनस का होगा, केवल इतना ही है. सो अब ये है, ये जो टर्म लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है. a क्यूब मीन्स ये है 3p
होल क्यूब, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। बिल्कुल ये लाइन लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3b², इसी लाइन पे आप इसको सेट कर लीजिए। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब जो यहाँ ये लाइन लिखी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको आप देखिए ही नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है मत देखिए। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² मीन्स ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो गया 3p का होल स्क्वायर और b मीन्स 1/6 और प्लस 3ab², a मीन्स 3p और b² मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर। ये जो लाइन है इसी एक्सपेंशन में राइट साइड में सेट हो गया। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, a माइनस बी टू द होल क्यूब। तो a है 3p और माइनस 1/6 का होल क्यूब। सो ये आपका आंसर हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। आंसर में बुक के आंसर में वही 3 बार लिखा है 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 मीन्स क्यूब और वो 3 पार्ट। सो दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। ये था माइनस में, कभी प्लस भी हो सकता है। तो अगर प्लस होगा, प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर यहाँ पे सभी साइन प्लस में हैं, ये सब प्लस में है, तो आप ये जो प्लस जहाँ भी माइनस आपको दिख रहा है ये है, कहीं भी माइनस नहीं रहेगा, सब प्लस में रहेंगे। प्लस वाले केस में सब प्लस रहता है। तो अगर ये सभी टर्म आपको प्लस मिल जा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो ये जो बीच का साइन है, मिडिल साइन है, दैट विल बी आल्सो प्लस, तो वो प्लस में हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट 5. The other parts are also same. So in this video I have solved some questions of the exercise 2.5 of the NCERT book chapter 2 polynomial, and this was the first part, and some more questions I will do in the second part of the same exercise. So I hope all the formula, all the calculation, all the method is clear to you. So learn the formula. Questions समझने के पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। So wait for the next part, means the second part. All the best. Thank you.